Mutation and genetic code. The relation between the gene and the DNA are best understood by mutation. याद रखना, इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है. हाँ, the relation between gene and DNA are best understood by mutation. Okay. You have studied about the mutation and the effect in chapter 4. Effect of large deletion and rearrangement in a segment of DNA are easy to comprehension. Large deletion and rearrangement in segment of DNA are easily comprehensible. It may be result in loss or gain of gene and so function. Effect of point mutation well explained here. A classical example of point mutation is a change of single base pair. पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन में चेंज इन सिंगल बेस पेयर होता है. ओके. In the gene for beta globin change result in the change in the amino acid glutamic to valine. It result in the disease concerned with sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? फॉर बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ द अमीनो एसिड ग्लूटामिक टू वेरालिन हो जाता है. ओके. इट रिजल्ट इन डिजीज कंडीशन को सिकल सेल एनीमिया. इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट और डिलीटेशन अ बेस इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन कैन बी better understood by the following simple example. Consider a statement that is made by the following word each having 3 letters in the genetic code. Ram has red cap. ठीक है, समझ गए यहाँ तक? ठीक है. If we insert a letter B in the between has and are red, then rearrangement segment it would be read as Ram has buried Dijia. Similar, we know insert the 2 letters of the place BI. Ram has beard his cap. Now we insert the letter big. The statement would be Ram has big red cap. This simple exercise can be repeated by deletion the letter RED one by one and rearrangement. The statement make its triplet word Ram has a cap. The conclusion from the above exercise is obvious. Insertion or deletion of one or two base change in the reading frame from the point of the insertion or deletion. However, such mutation are referred to as फ्रेम शिफ्ट इंसर्टेशन और डिलीटेशन ऑफ म्यूटेशन. इसको क्या बोलते हैं? एक या दो को डिलीट करते तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट इंसर्टेशन या डिलीटेशन म्यूटेशन. ठीक है, कुछ भी करते हैं. फ्रेम शिफ्ट करके जब से इसको बढ़ा रहा है और डिलीटेशन जब डिलीट कर रहा है. ओके. इंसर्टेशन और डिलीटेशन ऑफ ए 3 और इट्स मल्टीपल बेस इंसर्ट और डिलीटेशन of one or multiple codon, hence one or multiple amino acid. A reading frame remain unaltered from point onward. जब 3 को करेंगे ना डिलीट या फ्रेम या ऐड करेंगे तो चेंज नहीं होगा. फ्रेम रीडिंग अनअल्टर्ड फ्रॉम द दैट पॉइंट ऑनवर्ड चेंज नहीं होगा. ओके. अब हमारा tRNA जिसको हम लोग एडेप्टर RNA भी बोलते हैं. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द प्रोपोजिशन ऑफ कोड it was clear Franz Crick that it has mechanism to read the code and is linked to the amino acid. Franz Crick का मॉडल से ही हमें पता चल गया था कि read mechanism to read the code and also it linked to the amino acid because amino acid has no structural specificity. ऐसा क्यों होता है? यहाँ से assertion रीजन क्वेश्चन बन जाएगा. हाँ, बिकॉज एमिनो एसिड हैज नो स्ट्रक्चर. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नो स्ट्रक्चर स्पेसिबिलिटी. क्या है? नो स्ट्रक्चर स्पेसिबिलिटी टू रीड द कोड अनइक्वाबेबल. रीड द कोड अनइक्वाबेबल. क्या करता है? रीड द कोड अनइक्वाबेबल. रीड द कोड अनइक्वाबेबल. रीड द कोड अनइक्वाबेबल. ही postulate the presence of an adapter molecules that would on one hand read the code, on other hand would bind the specific amino acid. The tRNA then code sRNA soluble RNA was known before the genetic code was postulated. तब से जाना जाता है जब से genetic code postulate भी नहीं tRNA. However, its role as an adapter molecule was assigned much later.
however its role as an adapter molecules, इसका रोल एज adapter molecules was assigned much later, इसको तब हमें पता चला बहुत बाद में, much later. Okay. tRNA has anti-codon loop. tRNA के पास क्या होता है, एंटी-कोडन लूप. यहाँ से assertion written क्वेश्चन बना लेगा. tRNA has anti-codon loop that has base complementary to the code, and it also has an amino acid acceptor end, क्या है, amino acid acceptor end, to which it bind to the amino acid. tRNA are specific for each amino acid. tRNA क्या होता है, tRNA specific for each mRNA. tRNA जो है ना स्पेसिफिक होता है फॉर ईच एमिनो एसिड, mRNA से नहीं, स्पेसिफिक एमिनो एसिड. ओके. फिगर फ्रॉम 15.12. फॉर इनिशिएशन देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA रेफर टू इनिशिएटर tRNA. फॉर इनिशिएशन स्टार्ट करने के लिए देयर इज अनदर स्पेसिफिक tRNA, स्टार्ट करने के लिए अनदर स्पेसिफिक tRNA दैट इज रेफर टू इनिशिएटर tRNA. देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडन. याद रखना कोई भी tRNA नहीं है स्टॉप कोडन के लिए, कोई भी tRNA नहीं है फॉर स्टॉप कोडन के लिए. ओके. इन फिगर 52 द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डिस्पेक्टेड लुक लाइक क्लोवर लीफ. सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा नजर आता है tRNA, क्लोवर लीफ. इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज अ कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स लुक लाइक इन्वर्टेड एल. इन एक्चुअल स्ट्रक्चर लुक लाइक इन्वर्टेड एल. देखो यहाँ पे क्या होता है, 5 प्राइम से 2 प्राइम कोडोन है, ए यूजीन, तो इसका क्या होगा, tRNA सेरिन है या थेरिन है, AUCG UACG. हाँ. अब हम लोग जाते हैं ट्रांसलेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पोलिमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम ए पोलोपेप्टाइड. ट्रांसलेशन क्या होता है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पोलिमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम ए पोलोपेप्टाइड. ट्रांसलेशन हमें बताता है पोलिमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड फ्रॉम ए पोलोपेप्टाइड से पोलिमराइजेशन होता है एमिनो एसिड. ओके. The order and the sequence of amino acids are defined by the sequence of base in the mRNA. The order and the sequence of amino acids are defined by the sequence of base in mRNA. The order and the sequence of amino acids are well defined by the sequence of base in the mRNA. ठीक है, याद हो जाएगा. हाँ, इम्पोर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा आज बनेगा कल. The amino acid are joined by a bond which is known as peptide bond. हाँ, एमिनो एसिड प्रोटीन का बना हुआ था ना, तो इसीलिए वजन होता है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से. हाँ, ये सबको पता है, पेप्टाइड बॉन्ड से जॉइंट होता है. ओके. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी. हाँ, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एनर्जी. जब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो क्या कहता है, रिक्वायर एनर्जी. ओके. देयरफॉर इन द फर्स्ट फेज इटसेल्फ amino acid are activated in the presence of ATP and linked to their conjugative tRNA. Process communicate charging of RNA or amino acetylation of to become more specific, to become ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के लिए एनर्जी लगता है, इसी के लिए देयरफॉर फर्स्ट फेज ऑफ एमिनो एसिड आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर कॉन्जुगेटिव tRNA. एमिनो एसिड कॉन्जुगेटिव tRNA प्रोसेस communicate चार्जिंग ऑफ tRNA और एमिनो एसिटिलेशन. देखो एमिनो एसिड है, tRNA से बाइंड किया, इसी को प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ tRNA एंड एमिनो एसिलेटेशन ऑफ tRNA. ओके. हाँ, हो गया, चलो समझ गया. अब आगे बढ़ो. If two such charged tRNA are brought close enough, the formation of peptide bond between them. अगर दो चार्ज tRNA को पास ले आएंगे ना, तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बना जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम. वुड बी फेवर एनर्जेटिकली. क्या होता है, ये जो प्रोसेस है कहता है एनर्जेटिकली होता है. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वुड इनहेंस द रेट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. जब कैटलिस्ट होगा इनहेंस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके. The cellular factor responsible for the synthesis of protein is the ribosome.
सेलुलर फैक्टर क्या था? सेलुलर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ प्रोटीन इज द राइबोसोम. क्या होता है? राइबोसोम. ओके. द राइबोसोम जो होता है कंसिस्ट स्ट्रक्चरल आरएनए आर अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन. यहाँ से तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ भी है. द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल the ribosome consists of structural RNA are about 80 different protein. The ribosome is constituent of structural tRNA and about 80 different protein. Okay. In inactivate stage it exists. देखो जब inactivate stage में होता है ना, क्या होता है? जब inactivate stage में होता है it exists as two subunit. इनएक्टिव स्टेट में 2 सब यूनिट होता है. कौन? राइबोसोम. ए लार्ज सब यूनिट एंड ए स्मॉल सब यूनिट. व्हेन ए स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर द एन mRNA. स्मॉल सब यूनिट किसको इनकाउंटर करता है? एन mRNA को. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द mRNA टू प्रोटीन बिगिन. जब स्मॉल सब यूनिट mRNA को बाइंड करता है तभी प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिन होता है. ओके. देयर आर 2 साइड इन द लार्ज सब यूनिट. 2 साइड होता है लार्ज सब यूनिट. जैसे लार्ज सब यूनिट हुआ ना राइबोसोम का, जैसे एट 60-40, जैसे 60 होता है एंड 40 होता है, तो 60 में 2 सब यूनिट है. लार्ज सब यूनिट में क्या होता है? लार्ज सब यूनिट में क्या होता है? देयर आर 2 साइड ऑफ लार्ज सब यूनिट. ठीक है. फॉर सब्सिक्वेंटली एमिनो एसिड बाइंड टू दिस एंड क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. नहीं समझा? फिर से पढ़ो. यहाँ क्या बोला? देयर आर 2 साइड इन द लार्ज सब यूनिट. 2 साइड होता है लार्ज सब यूनिट में. फॉर सब्सिक्वेंट एमिनो एसिड बाइंड हो जाता है इनफ टू ईच अदर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है. फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. देखो जैसे 60 है ना, इसमें 2 सब यूनिट हुआ. साइट 1 साइट 2, इसमें जब बाइंड करेगा तब इसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगा. ओके. The ribosome also act as a catalyst. हाँ, ribosome also act as a catalyst. 23S and RNA in bacteria is the enzyme ribozyme for the formation of peptide bond. किसका formation किसको करता है? Peptide bond. Okay. A translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and stop codon and code for a polypeptide. हाँ. Translation unit in mRNA is the sequence of RNA. Translation mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon AUG and stop codon and code for a polypeptide. Stop codon and code for the polypeptide. Okay. And mRNA also has additional sequence that are not translated, that are referred to as untranslated region. हाँ. mRNA में also additional sequence होता है. that are not translated, referred to as untranslated region. UTR. The UTR are present at both 5 and before stop codon and 3 and after stop codon. हाँ. UTR जो है प्रेजेंट होता है बहुत जगह पे, at 5 and start codon and 3 and before stop codon ओके. हाँ. दे आर रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन. UTR किसके लिए हमें चाहिए? UTR हमें किसके लिए चाहिए? UTR चाहिए हमको फॉर द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस. ओके. हाँ. फॉर इनिशिएशन स्टार्टिंग के लिए द राइबोसोम बाइंड टू द mRNA एंड स्टार्ट कोडॉन दैट रिकॉग्नाइज ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA. सिर्फ रिकॉग्नाइज कब करता है? ओनली बाय द इनिशिएटर tRNA होगा तभी इसको रिकॉग्नाइज कर सकता. ओके. द राइबोसोम प्रोसीड टू द एलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज. द राइबोसोम प्रोसीड टू द एलोंगेशन फेज ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज. ओके. ड्यूरिंग द स्टेज complex composed of amino acid linked to the tRNA subsequently bind to the appropriate codon in the mRNA by forming a complementary base pair with the tRNA anticodon. The ribosome moved from codon to codon along the mRNA. Amino acids are added one by one, translate into the polypeptide. Amino acids are added one by one and translated into the polypeptide sequence and dedicated by DNA and represented by RNA. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही. dedicated by DNA and represented by mRNA. Okay. At the end, a release factor bind to the stop codon. Release factor क्या था? bind to the stop codon, terminate translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. Terminating translation and releasing the completing polypeptide from the ribosome. क्या होता है?
at the end releasing factor bind to the stop coder. Releasing factor जो होता है bind किसे करता है, releasing factor bind to the stop coder, terminating translation and releasing the complete polypeptide from the ribosome. Okay, हाँ. अब हम आते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. Regulation of gene expression. Regulation of gene expression refer to a very broad term that may occur at various level. ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन रेफर टू वेरी ब्रॉड टर्म डेट में भी अकर एट अ वेरियस लेवल. हाँ, रेगुलेशन तो वेरियस लेवल पर होता है. ठीक है, बात तो सही है, इसलिए से यही क्वेश्चन हो सकता है. कंसिडरिंग दैट द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. कंसिडरिंग द जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड. जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. इट कैन बी result at several level. It can result at the several level. In eukaryotic the region could be exerted at. रेगुलेशन क्या होता है यूकार्टिक में वेरियस लेवल. पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन. प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्पेलिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशन रीजन. 4 रीजन पर हम लोग जीन एक्सप्रेशन होता है. फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन. प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्पेलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशन रीजन. ओके, the gene in a cell are expressed to perform particular function or a set of function. gene in a cell, जो जीन होता है ना सेल में, एक्सप्रेस टू परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शन. ओके, फॉर एग्जांपल इफ an enzyme called the beta galactoside is synthesized by E. coli. beta galactoside होता है जो एंजाइम, वो synthesized by E. coli. ओके, it is used to catalyst the hydrolysis of disaccharide. क्या होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकराइड लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज. ओके, लैक्टोज किसमें होता है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज. द बैक्टीरिया यूज देम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी. हेंस इफ द बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम to be utilized for the energy source, they would be no longer required for the synthesis of enzyme beta galactoside. अगर उसके सराउंडिंग में ग्लैक्टोज नहीं रहेगा तो बैक्टीरिया जो है तब सिंथेसाइज भी नहीं करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइड. ओके, क्या सिंथेसाइज करेगा बीटा ग्लैक्टोसाइड, जो सिंथेसाइज भी नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू सिंथेसाइज बीटा ग्लैक्टोसाइड. हाँ, देयरफॉर इन सिंपल टर्म it is a metabolism, physiological, environmental condition that regulate the expression of gene. Metabolism, देखो क्या क्या gene expression, metabolism, physiological, and environmental factor that regulate the gene expression. Okay, the development and difference of embryo into the adult or such a result of the coordination regulation of expression of several living entities. मैं टेस्ट में गलत हो गया था. The development of differentiation into the adult organism as a result of coordination regulation of gene expression at several level. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं प्रोकार्टिक में. हाँ, इन प्रोकार्टिक कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ठीक है, नहीं समझा, फिर से पढ़ो. इन प्रोकार्टिक में कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ओके, in a transcription unit the activity of RNA polymerase at a given promoter in a turn regulated by the interaction with the accessory protein which affect the ability to recognize start site. हाँ, नहीं समझा, नहीं कुछ भी इस लाइन से नहीं समझा. in transcription unit the activity of RNA polymerase at a given promoter in turn regulated by the interaction with the accessory protein which affect the ability to recognize the starting site. Okay, the regulatory protein
कैन एक्ट एज बोथ पॉजिटिव एक्टिवेटर्स एंड नेगेटिव रिप्रेसर। हाँ, रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है ना, रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट एज बोथ पॉजिटिव एक्टिवेटर एंड नेगेटिव रिप्रेसर। रेगुलेटरी प्रोटीन एक्ट एज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एक्टिवेटर होता है और नेगेटिव रिप्रेसर होता है। The accessibility of promoter region of a prokaryotic DNA in many cases regulated by the interaction of protein with the sequence terminal operator। नहीं समझा, फिर से The accessibility of promoter region of the prokaryotic DNA in many cases regulated by the interaction of protein with the sequence terminal operator। नहीं समझे, फिर The accessibility of promoter region of the prokaryotic DNA in many cases regulated by the interaction of protein with the sequence terminal operator। किसका? प्रोकार्योटिक, यहाँ पे याद रखना। The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA है, RNA नहीं है। In many cases regulated by the interaction of protein with the sequence terminal operator। The operator region is adjacent to the promoter element in most often, and in most cases the sequence of operator bind to the repressor protein। Each often has its specific operator एंड स्पेसिफिक। हर एक ऑपरेंड के पास स्पेसिफिक ऑपरेटर होता और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता, और ईच ऑपरेंड के पास स्पेसिफिक ऑपरेटर और स्पेसिफिक रिप्रेसर होता है। फॉर एग्जांपल, लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरेंड। लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरेंड। हाँ, याद रखना, लैक ऑपरेंड जो होता है प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरेंड एंड इंटरेक्टेड इन स्पेसिफिक विथ लैक रिप्रेसर ओनली and interacted with the lac repressor only and interact with the lac repressor only। ओके, हो गया।